Hello, my dear student of Standard 6. Welcome to you once again, and this time we are going to finish our chapter number 11, that is the landform. Already we had covered the first part, and now this is the second part. So let's begin. Okay, there is a saying for us that it is given by Napoleon Hill. So let's read first of all. If you can't do great things, do small things in a great way. Okay, so very inspiring line, you can say motivation line. If you go in a simple terms, अगर हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते ना, तो हमें छोटी चीज़ें बहुत महान तरीके, अगर हम लोग बड़ी चीज़ें महान तरीकों से नहीं कर सकते तो छोटी छोटी चीज़ों को ही महान तरीकों से कर सकते हैं. ओके, सो बेसिकली वट एवर यू नो हाउ टू डू, आपको उसको सबसे बढ़िया तरीके से करना चाहिए. ओके, आगे बढ़ते हैं. Now, here we are going to see our part. So let's get started. So Plato क्या होता है? First of all, let me show you कि Plato होता क्या है. See, Plato हम लोग उस जगह को कहेंगे. Suppose this is a land and there is a mountain. And वो माउंटेन ऊपर से कैसा है? आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ दिस पार्ट है. ऊपर से एकदम फ्लैट है, टेबल लैंड वी कैन से. सो इसको हम लोग प्लेटो कहेंगे. ठीक है. सो प्लेटोस के भी अपने अपने टाइप होते हैं. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर. लैंड पार्ट हैविंग अप्रोक्सीमेट हाइट of more than 180 meter above the sea level, wide and flat surface from the top is called the plateau. जो मैंने आपको भी डेफिनेशन बताया था, सेम टू सेम वही है. ओके, लैंड जो जिसकी हाइट मोर देन 180 मीटर्स है. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, सो यार जो लैंड फॉर्म हाइट इज अप्रोक्सीमेटली 180 मीटर. 180 you are supposed to remember from the sea level, and uh, from the surface of the earth and top, and it is flat should be there. Okay, that is already discussed. Now classification of plateaus. Plateaus can be divided into three parts. So how many types of plateaus are there? Well, there are three types of plateau are there on the base of the geographical location and structure. Intermont plateau, Piedmont plateau, and continental plateau. Okay, so first is a Intermont plateau we are going to discuss, and then Piedmont, and then finally continental. So let's start it. Let's begin. So first you can see a picture is given over here, and it is written that Intermont plateau. So you can just observe the shape. Okay, now we are going to read. Any part of the land which is fully or partially surrounded by the high mountains from all the four sides is called Intermont plateau. Okay, plateau of Tibet and plateau of Mongolia are its example. So what they say कि मीन्स चारों तरफ से माउंटेन्स हैं एंड बीच में आपकी एकदम फ्लैट जमीन हो गई. दे आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली दिस शेप. ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में एकदम फ्लैट लैंड है और वो हाइट पे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमॉन्ट प्लेटो. आगे बढ़ते हैं. नाउ पिडमॉन्ट प्लेटो. नाउ ये क्या होता है पहले रीड कर लेते हैं. जस्ट वॉच द इमेज केयरफुली. डेट इज 11.7. ओके, आपको ये इमेज अच्छे से एक बार ऑब्जर्व कर लेनी है. ओके, गॉट इट. नाउ आगे बढ़ते हैं. Piedmont Plateau, region having straight slope on one side in a foot in the foot of the mountain is called the Piedmont Plateau. Patagonia, that is in South America, Piedmont, that is in USA, Malwa Plateau in India is the best example of the Piedmont Plateau. So आपको पहली लाइन पे बहुत ध्यान से सुनना है. रीजन हैविंग स्ट्रेट स्लोप. देखो ये स्लोप कैसी है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट है. ये एकदम स्ट्रेट है.
ओके, फ्रॉम द फुट हिल। सो इसको हम लोग पिडमोंट कहेंगे, ठीक है। ओके, now let us move to the next slide, and here we are going to talk about the continental, an elevated part, land part due to the geological movement of cooling down of magma or a big land creates a continental plateau. So they are talking about this part. ओके, सो ये जमीन से एलिवेट हुआ है, यानी ऊपर की तरफ गया है, एंड यू विल फाइंड कि ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है। ये अर्थक्वेक के कारण भी हो सकता है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण भी हो सकता है, एनीवन जब ज्वालामुखी शांत होता है तब भी ऐसा हो सकता है। Lavik Highland Plateau of Maharashtra in India, Plateau of Brazil, Plateau of Erbistan, Spain, Greenland, and Antarctica are the example of continental plateau. So all these places are example of the continental plateau. Okay. So let us move ahead. Now, importance of plateau. Now, why these plateaus are so important? Let us discuss. The lavaic soil of plateau is fertile and it is very favorable for cotton crops. Okay, so this type of soils are very fertile in nature, and of course it is good for growing your crops like cotton, जिसको हम लोग जिसके हम लोग कपड़े पहनते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रेशियस मिनरल्स लाइक आयरन, मैग्नीशियम एंड गोल्ड आर फाउंड फ्रॉम द एंशिएंट सॉलिड रॉक फॉर प्लेटो। फॉर एग्जांपल छोटा नागपुर, plateau of India. Slopes of this plateau are very important for the cattle rearing and also useful for the tourism and film industry. So first thing that you know it very well that इससे कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है। सेकेंड, प्रीशियस मिनरल्स लाइक आयरन, मैग्नीशियम, गोल्ड ये सब यहाँ पे मिलता है। Apart from it, it having the many example like Choda Nagpur, and all these are very good for cattle rearings as well as for the tourism and film industry. Now let us know. Now, plateau has formed almost in the center of Saurashtra of Gujarat. ओके, सो गुजरात के सौराष्ट्र में भी आपको इस टाइप का एक प्लेटो देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस मूव अहेड। नाउ प्लेन। So first of all, let me tell you what is plain. Now suppose this is a mountain. ओके, एंड माउंटेन से नीचे भी ये जो पार्ट होता है ना, जो बिल्कुल सीधा होता है, इसको हम लोग प्लेन कहेंगे। वैसे देखने जाए तो ये भी एक प्लेन है। सो जहाँ पे माउंटेन्स ख़त्म होते हैं एंड सीधी ज़मीन शुरू होती है, डेट इज कॉल्ड द प्लेटो इन सिंपल टर्म्स। नाउ लेट अस सी। लेवल लैंड मीन्स फ्लैट, लेवल लैंड और फ्लैट लैंड, एंड द हाइट इज लेस देन 180 मीटर। अगर वो 180 मीटर से ऊपर होता तो वो फिर प्लेटो बन जाता। ओके, सो आपको ये 180 वाला कॉन्सेप्ट तो माइंड में क्लियर रखना ही है। 180 meter above the sea level is known as a plain. Most of the plain in the world has formed by the alluvium soil deposit by the rivers. Apart from the rivers, some of the plains are formed by winds, volcano and glacier. अब यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि एलुवियम, सॉइल डिपोजिशन, ये सब क्या है? वेल, जब आपकी पहाड़ों पे से नदियाँ आती हैं, रिवर्स फ्लो करके आती हैं, तो दे contain lot of things with them. They are having small pebbles, stones, and many organic inorganic things they are carried. इवन कंकर, पत्थर, कीचड़, पता नहीं क्या क्या आता है। एंड ये जब हमारे सोयल के साथ मिक्सअप हो जाता है तो इससे हमारी सोयल क्या होती है, और भी फर्टाइल हो जाती है। एंड यही नहीं, ये सारे प्लेन्स इसी डिपोजिशन से फॉर्म्ड होते हैं। एंड नॉट ओनली डैट, अपार्ट फ्रॉम इट कुछ डिपोजिशन विंड से भी होता है, कभी कभी वॉल्केनो एंड इवन ग्लेशियर ऑल्सो। सो लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लेन। वेल, ऑन द बेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन, प्लेन कैन बी क्लासिफाइड एज कोस्टल प्लेन, स्ट्रक्चर, इसको हम लोग स्ट्रक्चरल प्लेन भी कहेंगे, इरोजन प्लेन एंड डिपोजिशन प्लेन। सो फर्स्ट टॉक अबाउट द कोस्टल प्लेन, स्ट्रक्चरल प्लेन।
सो कोस्टल का मतलब क्या होता है, जो समुद्र किनारे के पास का एरिया होता है। एंड सिंपल कोस्टल, समुद्र किनारे ज़मीन एकदम फ्लैट होती है। सच प्लेन आर मेनली फॉर्म नियर द सी शोर। ओके, सो समुद्र किनारे होती है व्हेन द एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट पार्ट of land near the seashore is uplifted due to the geological movement and these plains are formed. So due to the geological movement, अर्थ के जो मूवमेंट होती रहती है अर्थक्वेक के कारण या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण, दैट्स कॉल्ड जियोलॉजिकल मूवमेंट। वेल लेट मी इन्फॉर्म यू फ्रेंड्स, ये जो हमारा कॉन्टिनेंट्स है ना, ये आपस में एक दूसरे से कभी दूर जाते हैं कभी पास में आते हैं, बट हमको ये पता नहीं चलता है। रीज़न, इन 1 ईयर अप्रोक्स ऑन एन एवरेज ये 5 सेंटीमीटर दिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर में उसको पता चलता है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट लैक्स ऑफ ईयर तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड दैट इज such plains are known as the structural plain. This type of plain are often found in the coastal region. Plains situated in the southeast part of the United States of America spread up to the Gulf of Mexico. It is an example of the coastal plain. Erosion of the soil is in the bottom land create these plains, and plains is create of Australia is formed in such a manner. So due to soil erosion इस टाइप के प्लेन फॉर्म होते हैं, एंड ऐसे आपको यूएसए मेक्सिको के पास, मेक्सिको तक एंड इवन ऑस्ट्रेलिया के प्लेन्स भी कुछ इसी तरह से फॉर्म्ड हुए हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द इरोजनल प्लेन। इरोजन का मतलब क्या होता है? नाउ सी, एज्यूम करो कि देयर इज अ लॉट ऑफ रेनफॉल इन द माउंटेनस एरिया एंड सच ए रेनफॉल, उससे क्या होता है कि पहाड़ पे से बहुत सारी ज़मीन और ये पहाड़ का एक पार्ट पूरा खिसक जाता है और नीचे गिर जाता है। ओके, सो डेट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड ऑफ कोर्स, लेकिन उसको भी हम लोग एक तरह का सोइल इरोजन कहेंगे। एंड सपोज एक फ्लड आता है तो पूरे के पूरे जो गांव में जितने भी खेत है उसका ऊपर का लेयर वॉश आउट कर देता है, एंड डेट इज कॉल्ड द इरोजन। Process of erosion goes on continuously on the surface of the earth over a long run of time. So ये भी होता है मगर बहुत लॉन्ग रन प्रोसेस है, एंड इसको भी काफ़ी टाइम, इट इज़ ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग। सच प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द इरोजन विच occurs in the mountain and plateau because of the natural factor like river, wind and glacier. So again सेम फैक्टर जो ऊपर थे वही यहाँ पर रिपीट होते हैं। दिस types of plains are completely flat, and but they are seen between the hills and rockside. So plains of the Canada and western Siberia are formed because of the soil erosion. So इनके मतलब soil erosion होता ही रहता है, एंड soil erosion के कारण तो पहाड़ों के बीच में यूजुअली यू विल, पहाड़ों के आसपास आपको ज़्यादा soil erosion देखने को मिलता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट their example, it is the Canada and Siberian area. Plain built by the erosion are also called the peneplain. Now talking about the depositional plain. से फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऐसी खेत की ज़मीन है जो कोई काम की नहीं है, उसमें कुछ ग्रो ही नहीं होता है, बट ऑल ऑफ सडन क्या होता है, एक साल आपके यहाँ पे फ्लड आता है। अब ड्यू टू फ्लड रिवर के साथ साथ बहुत सारा कंकर पत्थर कीचड़ आएगा, तो आपका सॉइल के ऊपर एक नया लेयर बन गया। अब ये लेयर तो फर्टाइल है एंड इसमें से बहुत सारा क्रॉप ग्रो होगा। सो सच काइंड ऑफ प्लेन इज कॉल्ड डिपोजिशनल प्लेन। दिस टाइप ऑफ प्लेन आर फॉर्म ड्यू टू द एलुवियल डिपॉजिट बाय द रिवर्स। ओके, सो रिवर यहाँ पे एग्जांपल दिया, इवन ग्लेशियर, विंड ऑल्सो is in lake or sea. Such plains is called depositional plain and also called the riverine plain because ये river से formed होता है। And river plain of Ganga and Yamuna, Yongbao of plain in North China and Lombardy plain formed by the Po river in Italy are the unique example of the alluvium plain. So these are the examples when plains are formed with the deposition of the aluminium in the lake, and then they are called the lake field. Kashmiri Valley is the example of the lake field in India. Now talking about the importance of the plain. ये plain इतने important क्यों हैं? Well, talking about plains of the human habitation and trade commerce establishment and in the fertile plains. इंसान यूजुअली रहना का पसंद करता है प्लेन ज़मीन पे। ओके, एंड यहाँ पे बहुत सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी भी होती हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी होती है, एंड ऑल दैट। फ्लैट प्लेन्स हैव प्रूव्ड मोर यूजफुल फॉर द रोड रूट एंड रेल रूट। सो यहाँ पे
रेलवे लाइन्स एंड रोड्स बनाना बहुत ईजी होता है क्योंकि ज़मीन एकदम पहले से सीधी होती है. यू कैन बिल्ड rail and road easily on the mountainous area. Cities having dense population are situated in the plains. So जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी cities है वो यूजुअली सारी की सारी plains पे हैं. Fertile land is more useful for farm production. Okay, so if you want good agriculture production, then you need, of course, a good amount of fertile land. And farm produce supply raw material for the industry. So ये नो डाउट ये हम लोग को खाना तो प्रोवाइड करते ही हैं, पर प्लस पर ये हमको इंडस्ट्री के लिए भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. Now in geography you will going to heard in your future some of the words and that you are going to heard frequently. Even आप लोग अगर कभी ग्लोब लो या एटलास लो तो उसमें आपको ये टर्म्स यूजुअली देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट, ये कंप्यूटर लैंग्वेज का टर्म है. ओके, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपको ये एक अलग टर्म हो जाता है. बट देर आर सर्टेन जोग्राफिकल टर्म्स ऑल्सो like bay, gulf, cape, island. You will see valley, strait. All these are the important terminology from the point of geographical point of view. And ये मैं आपको थोड़ा सा से समझाऊंगा. Now bay, usually a part of an ocean water is called bay. Okay, so part of the ocean is called bay. They take shape like a huge and a wild lake surrounded by the land. And the bay can be large and small in size. The Bay of Bengal is the best example of it. Say for example, ये आपकी ज़मीन है. ओके, अब ये जो मैं पार्ट सेट कर रहा हूँ ना, what is this? It is nothing but the land. And this is a ocean. और ये बस इतना ही है. पर एक तरह से देखने जाए तो ये चारों लगभग ऑल द फोर साइड्स ये मतलब पानी से घिरा हुआ है. सो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बे ऑफ बंगाल. आप लोगों ने सब लोगों ने सुना ही है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट गल्फ. सो बे हम लोगों ने समझ लिया है. ओके, नाउ गल्फ. अब गल्फ क्या होता है? When watery area surrounded by the land from the three sides. Well, बे और गल्फ में क्या फ़र्क होता है? बे में ऑल द साइड होता है लेकिन गल्फ में ओनली थ्री साइड होता है. एंड गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ इज द बेस्ट एग्जाम्पल. ओके, आप लोगों को अगर नहीं पता तो गुजरात का मैप आप लोगों ने देखा होगा. इट इज़ समथिंग लाइक दिस. नो, नॉट लाइक दिस. मुझे गुजरात की पब्लिक पकड़ पकड़ के मारेगी अगर मैंने गलत मैप ड्रॉ किया तो. ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट. ओके, ये जो मैंने सेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ये तीन साइड से ज़मीन से घिरा हुआ है और वन साइड पूरा सी है. तो इसको हम कहेंगे बे ऑफ खंबात. यहाँ पे बे ऑफ खंबात है एंड यहाँ पर बे ऑफ कच्छ है. दिस पार्ट है वेर आई एम ड्रॉइंग द सर्कल. सो ये बे ऑफ के गल्फ ऑफ. ओके, गल्फ ऑफ कच्छ एंड दिस इज गल्फ ऑफ खंबात. आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट केप. नाउ व्हाट इज केप? फर्स्ट ऑफ ऑल रीड कर लेते हैं एंड देन समझते हैं. केप इज अ परपेंडिकुलर एंड ऑफ द लैंड दैट एक्सटेंड इनटू वाटर बॉडी. It can be known as the sea line. एग्जाम्पल कन्याकुमारी, केप ऑफ गुड होप. आप लोगों ने इंडिया का मैप तो देखा होगा. ओके, इट इज़ समथिंग लाइक दिस. वॉट एवर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट पर्टिकुलरली, नीचे वाला, जहाँ पे मतलब क्या होता है कि आपका जो ज़मीन है वो समुद्र के साथ अल्टीमेटली मर्ज हो जाता है. एंड यहाँ पे ज़मीन ख़त्म और समुद्र शुरू, तो इसको केप बोलेंगे. आप लोगों ने केप ऑफ गुड होप सुना होगा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है बिल्कुल नीचे. नाउ लेट अस मूव अहेड एंड हमारे जो लास्ट स्लाइड है उस पर आ जाते हैं. ओके, सो हियर केप डन, आइलैंड डन, आइलैंड से बाकी. ओके.
सो लेट गेट स्टार्टेड फ्रॉम द आइलैंड। सो एक ऐसी ज़मीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ समुद्र है, डेट इज कॉल्ड आइलैंड। अ पीस ऑफ लैंड इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल द फोर साइड इज नोन एज द आइलैंड। फॉर एग्जाम्पल लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, फिर ये शंकोदर आइलैंड जो हम लोग बेट द्वारका में देखने को मिलता है। बेट द्वारका आपको इट इज इन गुजरात। एंड पिरम बेट, पिरम बेट, सियाल बेट, ओके। सो ये सब जगहों के नाम है, यू कैन गूगल इट एंड ये चेकआउट कर सकते हो ये कहाँ पर है। नाउ टॉकिंग अबाउट द वैली। वैली क्या होता है? लो लाइंग रीजन from the mountain at the time of the formation of the fold mountain and block mountain erosion take place due to the flowing water. As a result valley are created. For example kashmir valley. So continuously आपके माउंटेन्स के बीच का जो एरिया है एंड डेट इज ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ द वाटर एंड ग्लेशियर आपका ये एक जगह बन जाती है तो वैलियाँ बनते हैं। वैली तो एक जगह से अगर हम लोग देखें तो दो माउंटेन्स के बीच में एक फ्लैट लैंड होता है एंड उसको हम लोग वैली कहेंगे, ठीक है। नाउ स्ट्रेट, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, पल्क स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। सो पल्क स्ट्रेट एक ऐसी जगह है जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। अ नैरो पीस ऑफ सी डेट इज जॉइंट टू लार्जर वाटर एरियाज इज कॉल्ड स्ट्रेट। वंस अगेन अ नैरो पीस ऑफ सी यानी समुद्र बहुत छोटा है, डेट जॉइन टू लार्जर वाटर एरियाज इज कॉल्ड स्ट्रेट। दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है उसको हम लोग एग्जाम्पल स्ट्रेट कहेंगे, ओके। इस्तुमस, ओके इस्तुमस ये मैं आई थिंक मैं ही पहली बार सुन रहा हूँ। लेट अस सी ये क्या होता है। अ नैरो पीस ऑफ लैंड विच सेपरेट टू वाटर बॉडीज इज कॉल्ड इस्तुमस। फॉर एग्जाम्पल पनामा आइलैंड इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ओके। अगर आप लोग वर्ल्ड मैप कभी वॉच करो तो नॉर्थ अमेरिका आपको यहाँ पे मिलेगा, साउथ अमेरिका नीचे मिलेगा, उसके बीच में एक बहुत छोटी छोटी पट्टी होगी एंड डेट इज कॉल्ड द आइलैंड, डेट इज कॉल्ड द पनामा आइलैंड। वहाँ पे पनामा नाम की एक जगह है एंड ये बहुत पतली लेयर है ज़मीन की जो दो बड़े बड़े पैसिफिक ओशन एंड एटलांटिक ओशन को अलग करती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट पार्ट डेट इज कॉल्ड पेनिनसुला। वेल आपको इंडिया का मैप तो अच्छे से पता ही होगा कि इंडिया का मैप जो नीचे वाला मैप ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ओके, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर आपको मिलेगा अरेबियन सी, यहाँ पे आपको मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, बे ऑफ बंगाल, एंड आपको लास्ट नीचे आपको मिलेगा इंडियन ओशन, ओके। तो ये जो ज़मीन है ये तीन तरफ से किससे घिरी हुई है? वाटर बॉडी से, एंड इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे पेनिनसुला। A piece of land which is surrounded by the sea from three sides are connected with the land on one is called peninsula. South India and Saurashtra are the example of it. Okay. So this is the exercise which we are going to discuss in our next session. Of course, we are not going to do only this much of MCQ. Well, 4 MCQ is given, 6 I will add from my side. I will add recognize me is given, so I will keep it with that, and question answer are given, but I will add some more questions and short note special chapter. So I think this time again we are going to skip the give reason. If I feel that give reason are important then I will put, otherwise you get ready with your CW and pen, and of course we are going to complete it. So again I was bit nervous when I'm reading it first time. So friends, इफ़ यू कैनॉट डू ग्रेट थिंग्स, अगर आप लोग बहुत महान चीज़ें नहीं कर सकते देन नो प्रॉब्लम, डू स्मॉल थिंग इन अ ग्रेट वे। पर छोटी छोटी चीज़ों को जो आप लोग करना जानते हो उसको बहुत ही ऐसे करो कि लोग देखते रह जाएं, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं आई एम लेट मी गिव माई एग्जाम्पल ओनली। वेल आई एम नॉट गुड एट ऑल इन कुकिंग, बट आई नो कि कैसे चीज़ों को बनाते हैं। सो मुझे सिर्फ सिंपल चीज़ आती है, एक ही चीज़ आती है, चाय बनाना। बट हाँ, मैं चाय जब किसी को पिलाता हूँ तो वो इंसान तारीफ़ करने लग जाता है। दैट मीन्स नो आई एम नॉट अ गुड कुक एट ऑल, बट मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, चाय बनाना, और वो भी मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाता हूँ, ओके। सो ऑलवेज फोकस ऑन द स्मॉल थिंग्स इंस्टेड ऑफ डूइंग द बिग थिंग्स। वेल महान लोगों की खास बात क्या होती है? वो बड़ा काम करते हैं लेकिन अपने सारे काम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और हर काम को वो अच्छे से करते हैं,
Okay, so with this we are finishing our chapter number 11, and of course in our next session we are going to discuss its question answer. So friend, till then, bye everyone, and take care, keep learning and keep watching.